So today in this video we will be discussing about next three principles of management. Let's take the principle of management called discipline. So what do you mean by discipline? This principle suggests that there should be a obedience and organization rules and regulation. There should be obedience towards the rules. Certain every management has certain rules. हर संस्था में कोई ना कोई रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, and it is a duty of a worker, a duty of a levels of management to adhere to that. Certain rules and regulations which are to be abided by all. Rules are same for everyone. If rules are made, then they are to be followed by all the levels, not only by all the levels, but also by the workers. Let's take an example. Suppose एक कंपनी में बहुत समय से लॉसेस चल रहे थे और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि और इवन रादर रिक्वेस्ट करी मिडिल लेवल वर्कर्स मैनेजमेंट से, लोअर लेवल मैनेजमेंट से और इवन वर्कर्स से रिक्वेस्ट करी, अगर आप सब कुछ समय के लिए डबल शिफ्ट पे काम करें तो शायद हम इन लॉसेस को रिवाइव कर पाएं, शायद हम वापस मार्केट में सर्वाइव कर पाएं. तो बट वी वोंट बी गिविंग यू एक्स्ट्रा सैलरी. Okay, if in future, if you are getting a profit, we definitely going to share with those profit to you. तो इसमें वर्कर्स और डिफरेंट लेवल्स के मैनेजर्स मान गए, उन्होंने रोज काम किया, डबल शिफ्ट्स में काम किया और सैलरी नॉर्मली. अब 6 months के बाद कंपनी इज गेटिंग प्रॉफिट. नाउ वर्कर्स रिक्वेस्टेड द कंपनी टू ऐड विद द प्रॉफिट्स, कि उनको बोला गया सर जो आपके प्रॉफिट हुआ है वो हमसे हमारी सैलरी में प्लीज देना शुरू करो. एंड कंपनी डिनाइड इट टू दैट. नाउ व्हिच प्रिंसिपल इज वायलेटेड हियर? द प्रिंसिपल वायलेटेड इज नोन एज डिसिप्लिन. व्हाई? बिकॉज देयर मस्ट बी लाइक डिसिप्लिन फॉर एवरीवन. इफ कंपनी is making certain promises, then it is a duty of a company to fulfill those promises. And if employees has promised to do in favor of a company, then employees also must do the same. There should be complete oneness. Both must do good for, because the objective is for the development of the organization. It's not for one, it is for a whole organization. So when we use discipline, it has various benefits of application. It basically promotes that proper application of discipline leads not only the rules part, but also it should be implemented with certain penalties if required. अगर जरूरत पड़ेगी तो penalties को भी यूज किया जाएगा डिसिप्लिन को यूज करने के लिए, डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए. जी, अगर ये प्रिंसिपल अप्लाइड होता है तो देन देयर आर BOA, बेनिफिट्स ऑफ एप्लीकेशन. इस प्रिंसिपल के अप्लाई होने के कुछ बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट बेनिफिट इज इट लीड्स टू सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इससे काम सिस्टमैटिकली होगा क्योंकि जब दोनों एक दूसरे के लिए सिंक करके काम करते हैं, when both superior and subordinate work together for a common purpose, it leads to systematic working. And even it ensures effectiveness and efficiency. We know management is a process of getting things done with the aim to achieve goals effectively and efficiently. It is a discipline which provide effectiveness, which provide efficiency, and even it promotes well-defined flow of communication. How it promotes the flow of communication? There is a hierarchical structure, top, middle, lower, then workers. So ऊपर से नीचे रिक्वेस्ट आते हैं और नीचे से ऊपर क्या जाती हैं, ऊपर से नीचे सॉरी ऑर्डर्स आते हैं और नीचे से ऊपर रिक्वेस्ट जाती हैं. Means there is a flow of communication. It is moved in a hierarchy. So discipline क्या लेके आता है? Discipline promotes well-defined flow of communication. Even to then discipline promotes, it develops a sense of commitment amongst the workers and management both. दोनों में sense of commitment आता है. अगर कंपनी प्रॉमिस कर रही है to fulfill those, then company will do the same. And even to then, if employees are promising, then they must fulfill their promise. So it is a oneness, working together. But on the same time,
if these principle is violated, there are certain consequence of violation. अगर ये प्रिंसिपल कंपनी में नहीं लगता तो उसका कुछ नुकसान है. क्या होगा सर? बिल्कुल रिवर्स टू दैट. It leads to confusion. Yeah, there will be a confusion. कैसे काम करे, कौन से रूल्स हैं? अगर रूल्स ही नहीं है, डिसिप्लिन ही नहीं है, it leads to chaos. It leads to there will be no effectiveness. काम हमेशा टाइम पे नहीं होगा, डिसिप्लिन ही नहीं है, there is no exact date when to accomplish the work, efficiency will be not there, and even to then the desired goal may not be achieved properly. जो काम, जो एंड टारगेट दे रखे हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे. And even to then it is difficult to create a healthy work environment. बच्चों, healthy work environment क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों मैनेजमेंट और वर्कर्स they are complementary. If they are not working together for their welfare, it leads to the wastage. And even to then it may lead to wastage of resources. Resources will not be optimum or properly utilized. So hope this principle is clear. We'll move on to the next principle. These duo principles, ये दो principles हैं. Unity of command, UOC. It is also known as UOC. And this is unity of direction, which we call it as UOD. इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं इनको साइमल्टेनियसली पढ़ा रहा हूँ. UOC is unity of command. It says one head, one boss. यहाँ पे head का मतलब डिपार्टमेंटल हेड नहीं है. यहाँ पे हेड का मतलब एक पर्सोनेल है. यहाँ पे हेड का मतलब एक इंडिविजुअल है, एक सबऑर्डिनेट है. कहता है एक सबऑर्डिनेट के ऊपर, जी सबऑर्डिनेट के ऊपर एक सुपीरियर हो. मिस्टर एक्स सबऑर्डिनेट है, इनके ऊपर एक सुपीरियर हो. अगर मिस्टर एक्स को एक से ज्यादा जन ऑर्डर देंगे तो मिस्टर एक्स कंफ्यूज हो जाएंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि एक हेड के नीचे एक ही सबऑर्डिनेट होगा, नो. या एक व्हाट वी कैन से सुपीरियर के नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट के ऊपर एक हेड होगा. जितने भी मैनेजर्स हैं उनके अंडर बहुत सारे सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, लेकिन उन सबऑर्डिनेट्स के ऊपर सिर्फ एक ही सुपीरियर होगा. दैट इज नोन एज यूनिटी ऑफ कमांड. समझाता हूं कैसे. कंपनी में सेल्स मैनेजर को मार्केटिंग मैनेजर ने बोल दिया आप 15% का डिस्काउंट दे दो टू ब्रश अप द सेल्स. ओके, तो जी सेल्स मैनेजर ने ऐसा करना शुरू किया. एंड व्हाइल गोइंग ऑन इन दिस प्रोसेस, अब जो इनके सीएफओ साहब थे, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, ही वाज लाइक annoyed. He said we can't give discount more than 10%, otherwise it leads to decrease in the profits of the organization. Now that sales manager get confused to whom he follow, whether to follow the marketing manager or to follow CFO. Means that individual must get orders from one and only one boss. एक इंडिविजुअल को, एक खोपड़ी को, एक इंसान को एक ही जन अगर ऑर्डर करेगा तो ही विल डू द वर्क. मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं. सपोज करो 3 टीचर्स हैं जी कॉमर्स में, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स. Your business studies teacher is not going to come say next day. आपको अगली क्लास में business studies teacher छुट्टी पे हैं. ये बात आपके इकोनॉमिक्स टीचर को भी पता है, ये बात आपके अकाउंटेंसी टीचर को भी पता है. अकाउंटेंसी टीचर सेज आपके बिजनेस की क्लास नहीं है कल, आई विल बी कमिंग टू योर क्लास, डू दिस वर्क एंड वी हैव अ क्विक टेस्ट. ठीक है जी. लास्ट पीरियड इकोनॉमिक्स टीचर का था. इकोनॉमिक्स टीचर भी कहती हैं आई नो योर बिजनेस स्टडीज टीचर विल नॉट बी कमिंग टुमारो, so you get prepared. I will be taking that period by requesting the coordinator, and even I will be taking a quick small test. So now students get confused. अब क्या होगा? बच्चों एक का भी काम नहीं करेंगे. When
accountancy teacher will come, they say they are expecting business studies teacher, sorry, economics teacher. And when economics teacher come, they say we are expecting the accountancy teacher. तो काम किसी का नहीं होने वाला. So therefore that individuals जो एक छोटा superior subordinate है, उसको सिर्फ एक ही superior order करेगा तो वो काम अच्छे से कर पाएगा. Otherwise it leads to wastage and chaos. If this principle applies in an organization, there are certain benefits to it. That is known as benefits of application. पहला benefit है बच्चों, it leads to systematic working. कंपनी में काम systematically होगा. It leads to increase in effectiveness and efficiency. अगर एक जन कमांड देगा तो वो उससे काम लेगा भी, सिर्फ पावर नहीं दे रहा. अगर अथॉरिटी देगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, which leads to effectiveness and efficiency. And even to then it facilitate coordination and communication. एक अच्छा देखो, जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट एक का रिलेशनशिप है, दो नहीं आ रहे, एक से ही ऑर्डर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, इन दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, इन दोनों में अच्छा कम्युनिकेशन है. So the application of the principle leads to proper coordination and cooperation. And even it is very easy to fix the responsibility. We know we will be getting orders from one boss, so it leads to fixing the responsibility. अगर बच्चों ये principle apply नहीं हुआ तो there will be certain consequences of violation. ये principle ना होने के कुछ नुकसान भी होंगे. अगर ये प्रिंसिपल अप्लाइड नहीं होता तो इट लीड्स टू कंफ्यूजन अमंग्स द सबऑर्डिनेट टू whom he'll follow. अगर देखो ये यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है तो बहुत सारे बॉस ऑर्डर कर रहे हैं. जब बहुत सारे बॉस ऑर्डर कर रहे हैं तो इट मे कंफ्यूजेस द सबऑर्डिनेट. इट मे लीड्स टू ईगो क्लैशेस. आपस में सबऑर्डिनेट्स में क्या आ जाएगा, इट लीड्स टू ईगो क्लैशेस अमंग द सबऑर्डिनेट. एंड इवन इट इज डिफिकल्ट टू क्रिएट a healthy environment. कंपनी में वर्किंग एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं होगा कि मैं तो भैया किसी को आंसरेबल ही नहीं हूं. जब यही नहीं क्लियर मुझे कि टू whom I am answerable, who will be questionable to me, it leads to improper or unhealthy working environment. Even to that it may lead to wastage of resources. किसको काम दिखाऊं, कौन काम लेगा, कौन काम देखेगा. Nothing is there. There's no superior subordinate relationship. It leads to wastage of resources. So this is known as unity of command. UOC. One head, one boss. एक subordinate पे एक boss. यहाँ head का मतलब head of department नहीं, क्या है, एक individual, एक खोपड़ी. ठीक है? Next is unity of direction. One head, one plan. One individual must be provided with one plan only. If that subordinate will get two different plans to do the work, he again get confused. You'll be noticing one thing, इनके benefits देखना same derive होंगे, इनकी limitations भी लगभग same होने वाली हैं. Why? Because अगर एक इंडिविजुअल एक जन से ऑर्डर लेता है, एक इंडिविजुअल एक प्लान से काम करता है, तो द बेनिफिट्स डिराइव्ड विल बी सेम. तो वन हेड वन प्लान. सपोज अगर हम वर्कर को कहते हैं यू नीड टू मेक 40 प्रोडक्ट्स इन अ डे, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू एंश्योर द utmost क्वालिटी. अरे भाई, यू गेट कंफ्यूज्ड. सर मुझसे या तो क्वांटिटी बनवा लो या मुझसे क्वालिटी करवा लो, मैं दोनों चीजों को इकट्ठा नहीं दे सकता आपको. सो द इंडिविजुअल मस्ट बी प्रोवाइडेड विद वन प्लान. अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कंपनी में अप्लाई होगा तो इट गिव्स बेनिफिट ऑफ सिस्टमैटिक वर्किंग. भैया एक प्लान से काम करना तो वर्किंग सिस्टमैटिक होगी, ना सिर्फ सिस्टमैटिक होगी बल्कि इट लीड्स टू इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. जब एक ही प्लान है, एक ही तरीका है काम को करने का, एंड इवन टू देन उस काम को करने में हमारी नैक आ गई, हमारी स्पेशलिटी आ गई. जब उसमें मेरी स्पेशलिटी आ गई बच्चों, इट लीड्स टू एफिशिएंसी, लेस वेस्टेज, मैक्सिमम आउटपुट.
Next, it increases proper coordination, it increases proper communication. भैया जब प्लान एक है तो मुझे पता है वो कहां से आया, ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, बांधना. इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर मैंने तुम्हें एक प्लान दिया एंड सी व्हेन यू आर प्रोवाइडेड विद सर्टेन अथॉरिटी यू आर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. पढ़ा था हमने, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अथॉरिटी टू बी एज्यूम्ड. When that authority, that plan of action to be done with authority, then automatically it is assumed through a proper responsibility. So it leads to ease to fix responsibility. But अगर बच्चों ये principle apply नहीं होता, then there are certain consequence of violation. ये principle ना होने के नुकसान होंगे. क्या नुकसान है? Adverse effect on effectiveness and efficiency. भैया वन हेड वन प्लान ही नहीं है, उसको दो दो तरीके दे रहे हो काम करने के, वो कंफ्यूज होता रहेगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होते रहेंगे. इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, सो इट लीड्स टू लेस एफिशिएंसी और नो इफेक्टिवनेस. वर्क विल गो नोवेयर. तुम्हें पता ही नहीं कहाँ जाना है, कैसे काम करना है. इट मे लीड टू अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स. जो आपके डिजायर्ड गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो सकते क्योंकि वर्कर को आपने कंफ्यूज कर दिया दो तरीके देकर, दो डायरेक्शंस देकर. तो वन डिपार्टमेंट और वन इंडिविजुअल मस्ट बी प्रोवाइडेड विद वन वे ओनली. एट अ मोमेंट वन वे. एक काम को करने का एक बेस्ट होता है तरीका, वो बेस्ट तरीके से ही काम किया जाना चाहिए. इट मे बी डिफिकल्ट टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन. यस, जब देयर इज वन हेड, जब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा तो हमें क्या होगा, सब बहुत सारे तरीके काम करने के, हम बेस्ट क्या वर्स्ट क्या कुछ नहीं पता, हम हर किसी भी तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है. इफ देयर इज नो कोऑर्डिनेशन इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्स. इफ देयर इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्स इट लीड्स टू लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. तो बच्चों आई थिंक आज की ये टॉपिक क्लियर हुए हमें. तीन प्रिंसिपल. पहला डिसिप्लिन, सर्टेन obedience and organizational rules and regulations which are to be by one head one boss. one head one boss. एक इंडिविजुअल पे एक बॉस. one head one plan. एक इंडिविजुअल के ऊपर सिर्फ एक ही तरीका होना चाहिए, एक वे होना चाहिए. एक से ज्यादा होगा कंफ्यूज होगा. In next video we are going to discuss the next 3 or 2 principles of management.